First class point. Dear student, good morning to one and all. Dear student, as we are in the continuation of the previous video, as in the previous video we have already seen the questions of the miscellaneous exercise part second first. Now today we discuss the questions of the exercise of the part second. So these are questions very important. That's why we are solving and in the examination of view, and also we can say these are the for competition view also we can see these are the important. So let's see how solve these questions. So first of all we have to find the value here z1 plus z2 plus 1 equal to, if we add two complex number, so put the value of z1 2 minus iota plus z2 value 1 plus iota plus 1. इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 plus 1 3 हो जाएगा, 2 plus 1 that is 3, और आप ऐड करोगे माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा विल बी कैंसल आउट. ठीक है. So and this one is also there, so 4 direct you can write. ठीक है ना. 2 3 4 iota and minus iota will be cancelled. Correct. Similarly, we can find z1 minus z2 plus 1. So 2 minus iota. Now minus of अभी z2 के आगे माइनस लगा देंगे, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, -1 माइनस iota plus 1. तो इसमें क्या होगा 2 भी 1 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 iota. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ z1 प्लस z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 is equal to numerator में 4 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 minus 2 आएगा. So we want to find this. So 2 from the numerator and denominator we cancel. यहाँ से 2 लेंगे और कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 1 minus आएगा. ठीक है. ये मोड निकालना है, तो अंदर वाली वैल्यू को पहले हम सॉल्व करेंगे. So mod of 2 1 minus आयोटा, तो ये हो जाएगा 2. नाउ रेशनलाइजिंग दिस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, मोड के अंदर रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा. तो 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगेगी -1 माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2. तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, 2 को न्यूमरेटर से कैंसिल करोगे 1 प्लस आएगा. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ वी वांट टू फाइंड द मोड. तो मोड जैसे हटाओगे, मोड का फॉर्मूला हमने क्या किया था, मोड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b. सो वी यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है. सो विच इज इक्वल टू रूट ऑफ a मतलब रियल पार्ट 1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट एंड आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर. तो इसका आंसर आपका रूट 2. सो वी गेट द वैल्यू एज ए रूट 2 फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. इन दिस वे वी कैन सॉल्व. सो एनी डाउट? You can write here in solution here a plus iota b is equal to x plus iota whole square and 2x square plus 1. This is equation number 1. ये equation 1 आ गया. Now we put iota as minus iota. Here also we put the value of iota as a minus iota in both sides. So what we get, a minus iota b, जहाँ जहाँ आयोटा और माइनस आयोटा पुट कर देंगे, so we get this. Now multiplying 1 and 2, multiplying 1 and 2 as usual method, left side multiply with the left and right multiply with the right. So see, this side multiply a plus iota b into a minus iota b. तो ये लेफ्ट का ले लेंगे, x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1.
Now in the left hand side we can say a plus b into a minus b. तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह आयोटा b है, और राइट में भी देखिए ये x प्लस आयोटा ये x माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा दोनों का स्क्वायर है होल स्क्वायर, और ये दोनों सेम टर्म है तो इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। Now say in the left we can put iota square, that is minus 1 and b square. You get a square minus b square is equal to, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में x plus iota into x minus iota, यानी a plus b into a minus b, so a square minus b square, ठीक है। So we can write here, so this will be x square minus iota square whole square upon 2x square plus 1 power 2, ठीक है। Now say a square minus b square, b square minus minus plus, so we get here a square plus b square. Now here also we can say x square minus iota square, अब माइनस आयोटा स्क्वायर को वैल्यू रख देंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, we get x square minus minus plus 1, तो यही आपको प्रूव करना था and prove. So in this way we prove this question also. Find the modulus and argument of complex number 1 plus 2 iota upon 1 minus 2. First of all we write this in the simplest or standard form. So in solution we write here 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota can be written as, first of all we rationalize this, opposite sign of the denominator value, तो डिनोमिनेटर में दे रखी है उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं, 1 minus 3 iota तो 1 plus 3 iota. Now numerator multiply with the numerator, so 1 plus 2 iota and 1 plus 3 iota. In the denominator also 1 minus 3 iota, 1 plus 3 iota. अब पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए एज यूजुअल मेथड, 1 को इससे करेंगे दे देगा 1 plus 3 iota. अब 2 iota मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 iota आ जाएगा, 2 iota मल्टीप्लाई विद 3 iota दैट इज 6 iota स्क्वायर, तो ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देखिए a minus b into a plus b, then again formula a square minus b square, so a means 1 square, b means 3 iota square. Now in numerator 1 and this is iota square we put as a minus 1, iota square की वैल्यू क्या रखेंगे minus 1, तो ये हो जाएगा 1 plus 3 iota plus 2 iota ऐड कर लेंगे तो 5 iota minus 6, then 1 square 1 minus 3 square 9 और iota square, तो ये 1 minus 6 कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 5 iota अपॉन 10, 10 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी, -1 और -9 प्लस का 9, 9 प्लस 1 10। अब यहाँ से आप न्यूमरेटर में 10 में से 5 डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये which is equal to -1/2 plus iota by 2. So now to find the modulus and argument we have to write in complex form in polar. So we compare with -1/2 plus iota by 2 with r cos theta plus r या फिर iota लिख दीजिए iota r sin theta। तो पोलर फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो r cos theta की वैल्यू क्या आ गई -1/2, so here r cos theta equal to -1/2 and r sin theta की वैल्यू क्या, कोएफिशिएंट r sin theta क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा
यहाँ आयोटा कोएफिशिएंट क्या 1/2. नाउ स्क्वायरिंग and then adding, or you can write adding after squaring, ऐसे भी लिख सकते हो आप. तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में r cos थीटा, यहाँ लेफ्ट साइड में r sin थीटा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर और ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos. और राइट में देखिए यहाँ -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/2 का करेंगे 1/4, दैट इज 1/2, 1/4 upon 1/4, 1/2 आ जाएगा. और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. So what we get, r square 1 equal to 1/2. So r square equal to 1/2. So r equal to root of 1/2, which is 1/2. तो ये r आ गया. r को हम क्या कहते हैं, मॉडुलर. तो इसका मॉडुलस तो आ गया 1/√2. Now this value of r we put in 1. We put r equal to 1/√2 in equation 1 and 2. तो इन इक्वेशन में r की वैल्यू रख देंगे. फर्स्ट में रखोगे तो 1/r cos थीटा इक्वल टू -1/2, और सेकंड में r की वैल्यू रखोगे 1/√2 sin थीटा इक्वल टू 1/2. इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. cos थीटा इक्वल टू -√2/2 which is equal to -1/√2. let's write कर लेंगे. and sin theta equal to √2/2 which is 1/√2. So now as we already know the trigonometry, in trigonometry at what angle or for which angle the value of sin theta is 1/√2 and value of cos theta is -1/√2. ये हमने कल भी किया इसी टाइप का पिछली क्लास में. तो थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट sin is positive and cos is negative, and at 45 degree the value of 45 radian, you can say value of the sin is 1/√2, cos is 1, but minus is there, therefore we can say theta will be pi minus pi/4, which is 3 pi/4. So here that is equal to argument. So finally you can say the modulus of this function is 1/√2 and argument is 3 pi/4. You can write if x minus iota y into x plus iota y is the conjugate of -6 -24, यानी इस नंबर का कॉन्जुगेट ये नंबर है, लेकिन बाय डेफिनेशन कॉन्जुगेट ऑफ एनी नंबर, जैसे आपका z है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार a माइनस आयोटा. कॉन्जुगेट ऑफ द z इज z बार which is a माइनस आयोटा, यानी आयोटा की जगह माइनस आयोटा. तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो यहाँ आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. दैट इज so from this we get the value of x minus iota, x minus iota y. ये तो आपका कांस्टेंट ही है, इसलिए इसको करने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा. so we can write x minus iota y. आपको x और y निकालना है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में लेंगे, बाकी सबको राइट साइड में ले लेंगे. तो ये क्या आ जाएगा, x minus iota y equal to -6 plus 24 iota upon 3 plus 5. ठीक है, इधर ही मल्टीपल में तो राइट साइड में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए. ठीक है, आफ्टर रेशनलाइज वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो x minus iota y equal to -6 plus 24 iota 3 plus 5 iota. Multiply numerator and denominator by opposite side. So we can write this as x minus iota y is equal to, अब इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 multiply with 3, that is -18, -6 multiply with -5 iota, तो +30 iota, plus
then 24 आयोटा मल्टीप्लाई विद 3, तो ये 72 हो जाएगा, 72 आयोटा। और 5 से करेंगे 25 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ x माइनस आयोटा y लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू नाउ 24 आयोटा विद दिस, so minus will be there and 24 5 for the 22 10 और 12, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन, अब डिनोमिनेटर देखिए a प्लस b इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 5। तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये माइनस है, ये 30 प्लस 72 को ऐड कर लीजिए तो 92 हो जाएगा, नहीं 102, ठीक है ना, 2 7 3 10 माइनस 120 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 स्क्वायर 9 25 आयोटा स्क्वायर। So now this is minus 18 plus 120 plus 102 iota upon 9 plus 25. Clear? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये कितना हो जाएगा, 18 करोगे तो -102 प्लस 102 आएगा, 120 में से 18 करोगे तो 2 रह जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा 102 प्लस 102 आएगा। अब ये 34 हो जाएगा, इसे 30, तो 34 इससे आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 12 2 3 9 9 और 1 10, तो ये 35 इससे डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर। तो फाइनली बात की है दैट इज x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 102 वी कैन डिवाइड बाय 34, दैट इज 3, so 3 plus 3 आयोटा। नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अब आप रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लीजिए, तो x इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो x इक्वल टू 3। अब y का क्या कॉम्बिनेशन, आयोटा का माइनस y है और यहाँ आयोटा का 3 है, तो माइनस y इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। So our problem is if x plus iota y, so here we write given x plus iota y whole cube is equal to u plus iota of v, then we can show this u upon x plus v upon y equal to u 4 into x square minus ये 4 है, this is v, u upon x plus v upon y equal to 4। तो इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो रियल और इमेजिनरी अगर कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो a प्लस b होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब b इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, और b क्यूब दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा b, करेक्ट। So this is x cube plus 3x square y into iota plus 3xy into iota square, ये iota का स्क्वायर दे हुआ है और y का स्क्वायर प्लस iota cube y cube। Now we know that iota square equal to -1 और iota cube can be written as iota square into iota, so minus iota, so these values we put, तो ये क्या आ जाएगा, x cube 3x square y iota। अब यहाँ iota square की जगह -1 रख देंगे तो आगे माइनस आ जाएगा साइन, माइनस 3xy square प्लस, अब iota cube की जगह माइनस आयोटा
तो ये माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस यू प्लस आयोटा वी। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट लगा तो रियल नंबर जिसमें आयोटा नहीं है तो x पावर से माइनस 3xy स्क्वायर, ये हमारा रियल हो गया। और इमेजिनरी जिसमें आयोटा है और उसको कॉमन ले लो, आयोटा को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3x स्क्वायर y और ये माइनस y क्यूब इज इक्वल। नाउ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है कब होंगे? इफ देयर रियल पार्ट इक्वल टू रियल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इनका रियल को रियल के इक्वल रखिए और इमेजिनरी को। देयरफॉर x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू u and 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इक्वल टू। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालिए। अब देखिए राइट, हमको प्रूव क्या करना है? u अपॉन x, तो u की वैल्यू आ गई, अब x चाहिए तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b, x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर। तो यहां से x कॉमन आ जाएगा y स्क्वायर। देखिए यहां से ये पार्ट क्या है? x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, x कॉमन आ गया तो x क्यूब से x स्क्वायर हो गया और फिर y, ये तो u आ गया। इसी तरह से इसमें भी y कॉमन आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब ये हमको अपॉन में चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या है? u अपॉन x, तो इस x को मैं ले लिया तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u बाय x। एंड और इसमें भी ऐसे ही होगा 3x स्क्वायर माइनस दैट इज v बाय y। अब इन दोनों का सम चाहिए, लेफ्ट साइड में देखिए u बाय x प्लस v बाय x, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट द रिजल्ट, एडिंग 1 एंड 2। तो राइट साइड को राइट के साथ पहले करके मैं लिख देता हूं u बाय x प्लस v बाय x, दोनों की राइट साइड को मैंने ऐड कर लिया। अब लेफ्ट को भी करो, तो लेफ्ट में क्या देखिए x स्क्वायर प्लस 3x तो 4x हो जाएगा एंड माइनस 3y स्क्वायर एंड माइनस y स्क्वायर माइनस 4y। अब राइट साइड में 4 कॉमन ले लीजिए, तो u by x plus v by y equal to x square minus y square. Answer. So in this way we can this prove. Correct? Alpha and beta are different complex number, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए विथ ऑल्सो वी आर गिवन वन कंडीशन मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड, तो आपको फाइंड करना है मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो इन सॉल्यूशन डिराइव किया। अब इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, वी यूज z into z बार इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये आपको निकालना है इसलिए इसका मोड का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो z और z बार क्या है? नंबर और उसका कॉन्जुगेट। तो इसका मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू z यानी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार। ये हम लोग करेंगे z इंटू z बार। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए इसको मैं बाद में पहले लिख देता हूं, फिर b माइनस
1 minus alpha beta whole. So that can be written as beta minus alpha 1 minus alpha bar and bar of the above. So dear student, we can write this beta minus alpha into form of beta bar minus alpha bar upon 1 minus alpha into beta bar. Clear? We take the modulus and multiply. तो ये क्या आ जाएगा? This is equal to beta minus alpha upon 1 minus alpha bar multiply with beta bar minus alpha bar 1 minus. Now bar of bar, that is alpha and beta bar. Now we multiply numerator with the numerator, beta into beta bar minus beta into alpha bar minus alpha into beta bar minus minus plus alpha into alpha bar. In the denominator 1 minus alpha beta bar, then minus 1 into alpha bar beta and minus minus plus alpha bar alpha beta beta. So this is now, as we are given the values of mode of beta equal to 1 and also we have alpha into alpha bar, that is mode of this, and beta into beta bar, that is also beta. So this one, these three formula we have to use. इसको use कर लीजिए. So beta into beta bar, that is mode of beta square minus beta into alpha bar, alpha into beta bar, and mode of this we use formula here as given above, and 1 minus alpha beta bar beta plus this is the again formula square and beta square. Now put the value beta bar as a 1. इसकी वैल्यू पुट कर दी. मोड ऑफ बीटा इज 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा. So numerator see 1 minus beta alpha beta bar plus mode of alpha square upon 1 minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus 1 into 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा. यहाँ पुट करेंगे बीटा बार और मोड ऑफ बीटा है 1 का स्क्वायर 1 into this here. अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 1. यहाँ देखिए सब टर्म सेम है, so they will be divide, we get 1. So what we get finally, we get the value of this is 1, but we need only this. So square map this, so beta minus alpha 1 minus alpha beta bar equal to root of 1, which is 1. So finally value of this will be 1. So dear student, in this way one can find the value. So thanks for watching. Have a nice day.